વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજાયાણમ, નમો લોરે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ, પરમં હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ ક્રાંતિ જય સચ્ચિદાનંદ ક્રાંતિ દાતા, જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ। कांति आनंद जी, अब क्वेश्चन नहीं आए, अभी एक आए बाद में लेगा, तो 15-20 मिनट कैन यू टॉक टू द चिल्ड्रन बिटवीन इंग्लिश एंड गुजराती? तो महात्मा जरा माफ करिए, गुजराती में थोड़ा बच्चों के साथ सत्संग होएगा। If you have any question, you can ask. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો, તો આપણે એના વિશે વાત કરીએ। कांति If you आनंद have जी, any question, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ। સુરવીરતાને લાવજો એટલે શું કહેવા માંગે છે? એટલે જ્ઞાનને બાધક આપણી અંદર જે નબળીઓ પડેલી છે, વીકનેસ, એની સામે આપણે સુરવીરતા બતાવવાની છે। સુરવીરતા એટલે આપણી અંદર જ મિત્ર રૂપે દુશ્મનો રહેલા છે, એને ઓળખી લેવાના અને એની સામે આપણે સુરવીરતા બતાવવાની છે। બહાર બધાને સુરવીરતા નથી બતાવવાની। હા ખ્યાલ આવ્યો? સમ્યક પૂછે છે ને? હા સમ્યક, યસ યસ, સરસ સમજાયું તને? હા સમજાયું। જય સચ્ચિદાનંદ, હા, જય સચ્ચિદાનંદ। yeah, jara explain that, Kanti Anand ji, what does it mean? હા, એટલે આપણી અંદર જે કંઈ પણ વીકનેસ છે, કે જે આપણને આપણો જે ગોલ છે, આપણો જે ધ્યેય છે, એ પ્રમાણે ચલાવવામાં આપણને ઘણીવાર બાધક પડે છે। તો એનું નહીં સાંભળવું અને આપણે આપણા ધ્યેય પ્રમાણે ચાલવું, એ ખરેખર સુરવીરતા છે। હા સમજાયું।
હા તો હા. સમ્યક તારામાં વીકનેસ શું છે? જય સચિદાનંદ. What is your weakness? સમ્યક? બોલો. Samyak, what is your weakness? તારામાં કઈ વીકનેસ હશે ખરી? હા હશે ને? હા હા, તો એની સામે આપણે સુરવીરતા બતાવવાની છે. કઈ weakness છે તારામાં? आपने में कौन सी weakness है? ભણવાનું નથી ગમતું. ओह, उसको पढ़ाई नहीं पर ये तो अच्छा है। है कांतियानंद जी. આપણે બીજા હા, બાળકો કોને પઢાઈ ભણવાનું? નહીં Who doesn't like કરતા. studies? Please raise your hand. Okay, Kantiyanan ji, please speak on that. Kawan doesn't like, Ariana doesn't like. Hey, Ambara's grandson also doesn't like. તો હમ. એની વાત કરો, ભણવાનું નથી ગમતું. સ્ટડી તો કરવો પડે. બાળકોએ, વિદ્યાર્થીઓએ સ્ટડી ખાસ કરવો જોઈએ. હવે નથી ગમતું એ વીકનેસ છે, એનું સાંભળવાનું નહીં. પણ બધા વિષય ગમે છે પણ ઇંગ્લિશ નથી ગમતું. હા, હવે ઇંગ્લિશ તો તારા પપ્પા ભણાવે છે, પછી ના ગમે એવું બનતું હોય. હે? પપ્પા થોડા ગરમ સ્વભાવ વાળા છે ને એટલે. હે? પપ્પા થોડા ગરમી વાળા છે ને એટલે. હા, તે તારા પર પ્રેમ વધારે હોય ને એટલે તારા પર ગરમી કરે. હા, એ ગરમ નથી. તારા પ્રત્યે પ્રેમ છે કે આ મારા દીકરાને સારામાં સારું અંગ્રેજી આવડે, અને એવું અંગ્રેજી આવડે કે લોકો પૂછે કે આ કોનો દીકરો છે એમ. મિલનભાઈ નું. હા, ખ્યાલ આવ્યો તને? હા મને નહોતું આવડતું. હું તો 100 માંથી 3 માર્ક લાવતો હતો. કેટલા લાવતો હતો? 100 માંથી 3. એટલે હા, તો મારા કરતા તો તું હોશિયાર છે. હા મારા કરતા તો હોશિયાર છે ને. હા એટલે જે વિષયની અંદર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ પડે એ પછી આપણને ગમવા લાગે. તારી ઉંમર હજુ નાની છે, પણ અંગ્રેજી એ વર્લ્ડ લેંગ્વેજ કહેવામાં આવે છે. હા ખબર છે. હા, બહુ સરસ. તને ખબર છે એ જાણીને મને આનંદ થયો. એટલે સૌથી વધારે મહેનત એમાં કરવાની. અને તું કેટલો પુણ્યશાળી છે કે તને ભણાવનાર બે સાહેબ અને મેડમ, એટલે તને તો નવરો જ ના પડવા દે. અને દાદા પાછા. બરાબર ને? હા બરોબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હા, Pawan, you જય have a question? સચ્ચિદાનંદ. મને આપતા પુત્ર બનવાની શક્તિ આપો. ચોક્કસ દાદા ભગવાન પાસે શક્તિ માંગજે. અને અમે તો તારા માટે પ્રાર્થના કરીએ કે તને આવો સુંદર ભાવ અંદર ઉભો થાય છે. અને એમાં તારા મમ્મી પપ્પા, દાદા દાદીના ખૂબ આશીર્વાદ તને મળે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ દાદા ભગવાનને. હા, ખૂબ ખૂબ આભાર. જય સચિદાનંદ. Jai ઓકે, Sachidanand. યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. Kawan, you have a question? Yes, Okay. I like watching TV, but then my eyes will get spoiled. So how can I stop watching TV? Deepakanji, I couldn't hear properly. Did you hear Deepakanji? I શું like કે છે watching. રજનીભાઈ?
I like watching TV, TV. but how can I stop watching TV so my eyes don't get spoiled? Okay. Kanti Anand ji, he likes to watch TV. He Haji. cannot stop watching TV. Oh, it's not good habit. You are spoiling your time, your health, your eyes, and this question is not only for you, but nowadays all the children, including aged person too, they are very crazy to watch TV. Our time is very precious and we should not waste our time only watching TV. How can I stop? It's not good for your education too. Do you realize? Yeah, but how can I stop watching TV? I don't like to stop you watching TV, but I can say try to understand. At this age, your time is very precious, very important. So you pay attention towards your education. You can make your career. You can watch, but everything must be in normality. Do you understand? Very good. Very good. So, Kanti Anand ji, maybe he can learn Yes. learn pads or you like to sing, Kavan? Yes. Then why don't you ask your ba to teach you some pad? Kanti Anand ji, it's a good idea. Yes, it's a very good idea. My grandma does teach me. There you go. Hmm. So put on your TV a sign, no TV, only pods. Can you do that? Okay. Yes. Okay. All right. Good. Thank you. Anybody else has question? Okay. Thank you. Okay, we will go now to the adult session. Okay. Deepakaji, can you unpin those while I get? Okay, yeah, I will sure. get. You go and do that. Yeah, I will get Surya, Arav, and then we go to Kashyap Bhai. Okay. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। एक कोट पढ़ा था स्वामी जी की, ज्ञान परमानेंट है और देखना जानना ये टेम्पररी है। ज्ञान जो है वो परमानेंट है जी। और देखना और जानना वो टेम्पररी है, क्योंकि शुद्ध उपयोग जो है वो शुद्ध उपयोग का मतलब है मेहनत। वो तय करना पड़ता है हमें कि हमें
देखना है और जानना है कि हमारे भीतर अंतस्करण के लेवल पर क्या हो रहा है। और ज्ञान जो है वो परमानेंट है। ज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान, वो हमारा स्वरूप ही है, वो परमानेंट है। पर क्योंकि कहते जैसे हैं- जैसे जागृति बढ़ती रहती है, वैसे वैसे देखना और जानना, જોવું અને જાણવું એ વધુ ને વધુ ખુલ્લું થતું જાય છે। हिंदी में बोलिए। हाँ, ख्याल में आती है बात? पर जैसे आत्मा का स्वभाव ही देखना जानना है। नहीं, वो स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव क्या है? तो ज्ञाता दृष्टा और देखना जानना सेम ही तो है स्वामी जी। देखना जानना उसको भी ज्ञाता दृष्टा रूप से वो जान सकता है। अच्छा, मतलब ज्ञाता मतलब ज्ञान स्वरूप होना और दृष्टा मतलब दर्शन स्वरूप से होना, ऐसा? हाँ, बराबर। क्योंकि देखना जानना वो प्रज्ञा शक्ति पर आधारित है। मतलब एक गुण है क्या आत्मा है? हाँ, जी। वो प्रज्ञा शक्ति पर आधारित है। और ज्ञान जो है, जो परमानेंट है, वो निरालंब है। जब प्रज्ञा शक्ति विदाई लेती है और ज्ञाता दृष्टा अपना जो स्वभाव है वो प्रकट होता है। बराबर। हाँ, जी स्वामी। पर स्वामी जी जैसे आपने बताया देखना ये जानना आत्मा, कहाँ से लिया आपने ये? दिव्य देशना में था स्वामी जी, जो छोटी अच्छा किताब है अच्छा, ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 489। Okay. आरब, आपको क्वेश्चन है? स्वामी जी आपने बोला आत्मा का गुण होता है देखना जानना, तो आत्मा परमानेंट है तो आत्मा का गुण थोड़ी जाएगा अगर वो दूसरे देह में जाती है तो। नहीं, आत्मा का जो स्वभाव है, मतलब जो धर्म है, वो ज्ञाता दृष्टा है। क्या है? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा है। जी। जी हाँ। जी स्वामी जी। एक और प्रश्न था स्वामी जी कि जो हम जैसे कर्मों की जो निर्जरा होती है ना, वो कहते हैं कि अपन देखते जानते हैं तभी होती है, अगर वो छूट गया तो फिर कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है जैसे जैसे संयोग आते हैं, मगर हम भीतर से देखते हैं और जानते हैं तो हमें एक सुख की अनुभूति होती है। बराबर। हाँ, और अपना जो देखना और जानना जो है वो ज्यादा खुला होता जाता है। जी। निर्जरा तो हो ही रही है, निर्जरा तो हो ही रही है। ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये दृष्टि प्राप्त करने के बाद ही निर्जरा कहा जाता है। बराबर। कि जिससे कसाय बढ़े ऐसे कर्म बंधन नहीं होते हैं। जी, वो तो बराबर है स्वामी। जी स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये प्रश्न दोहराइए जरा, क्या बताया था आपने? एक मिनट अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिए विनीत के बाद। हाँ जी, देखते जानते नहीं है जिस संयोग को, तो क्या उसमें भी कर्मों की निर्जरा होती है क्या? हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी जी और जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। हाँ, मुझे ये इसमें शुद्धात्मा क्या प्रार्थना में आता है, जो शब्द अमने आता है वो उसमें मतलब अमने को में कौन कौन आता है वो थोड़ा बता दीजिए। ये अलग और भी जगह पे आता है अमने, शुद्धात्मा का प्रार्थना है ना, उसमें आता है। मैं आपको पढ़ के 1 मिनट बताता हूँ। हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो कि મને અમને આપણને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય। હું અમે આપણને તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયકાર રહીએ। तो ये मतलब ये हमने किनको बोला है, हमने ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। इतना ही है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है, मैं भगवान से अलग हूं, यही सबसे बड़ा भेदभाव है। सबसे बड़ा भेदभाव क्या है? मैं अलग हूं और भगवान अलग है, यही सबसे बड़ा भेदभाव है। यही भेदभाव मिट जाए और मैं शुद्धात्मा ही हूं, उसमें अभेद स्वरूप से तन्मयाकार हो जाए। बस इस प्रार्थना का जो कहिए अपन सेंट्रल आइडिया, वो सिर्फ इतना ही है कि हम परमात्मा के साथ अभेद स्वरूप से जिए, वहां कोई जुदाई हमें नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी कश्यप जी, समझे आप? हाँ, लेकिन ये मने तो फाइल नंबर 1 हो गया, लेकिन हमने में कौन कौन आता है ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, और ये मैं आपसे पूछना चाह रहा। नहीं, इसमें मत जाइए। अपने को सिर्फ इतना ही जानना है, कश्यप जी जुदाई से मिट जाए और अभेद स्वरूप से जिए, बस। मैं और भगवान एक ही है। हाँ जी, ये सीमंदर स्वामी के प्रार्थना में भी आता है, हे शासन देव देवियों, हे पांचांगुली यक्षिणी देवी, हे चंद्रन यक्ष देव, आप हमने श्री श्रीमंदर स्वामी ना चरण कमल में स्थान पामता मार्ग में कोई विघ्न ना आवे। तो इसमें हमने का क्या अर्थ है, मुझे ये बताइए। क्या इसमें हमने किनको बोला गया? हमने ये जो श्रीमंदर स्वामी के प्रार्थना में, हमने तो माना से ये भी अभेद, हमने का मतलब है ये भी अभेदता है। मतलब इसमें मेरे को ही नहीं, मेरे को ही नहीं, सबको, सभी प्राणियों को जीव मात्र अभेद स्वरूप से जिए। अच्छा, जीव मात्र के, हाँ, यही प्रार्थना है। अच्छा, हम सभी जीव मात्र के लिए बोला है, क्लियर हुआ? जीव मात्र के लिए बोला है, मतलब हम सब, मतलब भेदभाव से सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, क्योंकि
जब इतनी अभेदता हो जाती है तो वहां मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता। जी जी जी। ठीक है, मुझे ये समझ में है। एक और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो निष्पक्षपाती शासन देव देवियां हैं, इनका मतलब होता है कि निष्पक्ष जो भगवान है उनके शासन देव देवियां? एक मिनट कश्यप भाई, आई थिंक दीपका जी वी लॉस्ट हिम। हाँ जी। या मोमेंट। कांतियान जी। हाँ जी। ओके ओके ओके, बोलिए। हाँ जी हाँ जी, एक मैं और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये निष्पक्षपाती शासन देव, हाँ जरूर, का मतलब होता है कि जो निष्पक्ष भगवान है उनके शासन देव देवी होते हैं? निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं की बात कर रहे हैं आप? जी जी। हाँ, आपका हाँ। फोटो साइडवेज है कांतियानंद जी। है हाँ जी। निष्पक्षपाती, इनका विजन इतना बड़ा क्लियर है कि पक्षपात से हटकर जो निष्पक्षपाती है, जी। ऐसे निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। नहीं, इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें दो अर्थ लगता है कि जैसे पहले वाला उसका है वितराग शासन देव देविया, तो मतलब या तो हो सकता है, या तो हो सकता, इसके दो अर्थ में समझ में आते हैं। या तो जो शासन देव देवी निष्पक्षपात है, जिनका स्वभाव निष्पक्षपाती है। दूसरा अर्थ ये होता है, हो सकता है कि जो निष्पक्ष भगवान है उनके शासन देव। कौन सा सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वितराग शासन देवी देवताएं जो है वो तीर्थंकर भगवान का जो शासन है उसके रक्षक देवी देवताएं हैं। जी। उन हेलो। रजनी भाई, you are muted. ओके कांतियानंद जी अनम्यूट करिए। और आपका फ्रीक्वेंसी लो है तो हम कैमरा बंद कर देते हैं। अच्छा, कांतियानंद जी अनम्यूट करिए। दोनों नमस्कार अलग है तो दोनों देवी देवताएं अलग है, इतना हमें समझना है। ठीक है, मतलब कि ये भी शासन देव देवी है ना, निष्पक्षपाती शासन देव देवी। हाँ शासन, मगर वितराग शासन देवी देवताएं अलग है और निष्पक्षपाती शासन देवी देवताएं भी अलग है, इसीलिए दोनों नमस्कार अलग दिए गए हैं। मतलब ये निष्पक्ष होते हैं ऐसे शासन देव देवी। हाँ हाँ, जैसे कोई उदाहरण रूप में हम ले सकते हैं इसका? जैसे लक्ष्मी देवी है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो लक्ष्मी देवी को सभी धर्म वाले स्वीकार करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं?
हाँ जी करते हैं। सरस्वती देवी है, तो सरस्वती देवी को भी सभी धर्म वाले स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? नमस्कार करना ये बड़े महत्व की बात है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम जान सके कि हमारा नमस्कार किनको हम कर रहे हैं, इसलिए मतलब थोड़ा स्पष्ट हो। हाँ तो आ गया ना। हाँ वितराग शासन देवी दीदी कितने? चक्रवर्ती देवी है, पद्मावती माता जी है, अंबिका देवी है, ये सभी जितने भी तीर्थंकर भगवंत हो गए उन सभी आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया कि जो वितराग शासन देव देवी वो तीर्थंकर भगवंतों के शासन देव देवी है और तो सीधे वो उनके शासन से कनेक्टेड है होते हैं। और बाकी के वैसे वे भी निष्पक्ष ही है, शासन से कनेक्टेड होने के कारण, वितराग भगवंतों के शासन से कनेक्टेड होने के कारण उनको वितराग शासन देव देवी बताया। और क्योंकि अलग और भी सब निष्पक्ष है इसीलिए ये बताया गया है। क्योंकि यहाँ से निष्पक्ष होकर देव देवी होते हैं तो वो सत्ता वाले हैं, ताकत वाले हैं, शक्ति वाले हैं, तो वो हमें सहायता करे निष्पक्ष होने के वितराग मार्ग में बढ़ने के लिए। समझिए। और जैसे कांति आनंद जी ने बताया, ये नमस्कार करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां हमारा विनय बनता है। समझिए। ये आप बता सकते हैं कि लक्ष्मी देवी और जो सरस्वती देवी वो भी शासन देव देवी है, वो भी उनका भी शासन होता है निष्पक्ष, वो निष्पक्षपाती है। तो लेकिन इसमें शासन देव यानी निष्पक्ष यानी जो इम्पार्शियल है ऐसे, तो वो मार्ग को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। जो निष्पक्ष होना चाहते हैं उनको मदद करते हैं। इसीलिए हमें निष्पक्ष होना है। वैसे पक्षपात वाले भी देव देवियां हैं। आगे शासन देव देवी भी लिखा है ना उसका हाँ तो ये निष्पक्ष एक शासन है ना। उनका एक क्या बोले एम्पायर है, रूल है। अच्छा इसीलिए पक्षपात वाले भी हैं, निष्पक्ष वाले भी है। उनका रूल है। ठीक है, समझ गया। हाँ वो हेल्पफुल होते हैं। और निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि सारा विश्व पक्ष में पड़ा है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कौन बोलेंगे? विकास का है। विकास भाई। कंचन मेहता is also there. हाँ सर, जय सच्चिदानंद। आप बोलिए विकास भाई। हाँ जी, मेरा सवाल है अवर्णवाद, अपराध और अविनय, इसमें क्या अंतर है? देखिए, अवर्णवाद यानी ठीक तरह से वर्णन नहीं करना। ओके। जो है उसका विपरीत कहना। जी जी। बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना हम। जी जी जी। जो नहीं होता बोलते हैं। जी जी। अपराध यानी किसी के सामने होना। ओके। अपोज करना। ओके। विरोध करना अपराध। बड़े बड़े पुरुषों का जब ऐसा होता है ना तो वो अपराध में जाता है, क्योंकि वे सामान्य पुरुष नहीं है। विरोध करना अपराध। अविनय यानी जहाँ विनय करने योग्य है, नमन योग्य है और हम नमन नहीं करते। जी जी जी। एक प्रकार से हम उद्धत है बोलते हैं ना, उद्धताई बोलते हैं ना। जी जी। ठीक तरह से नहीं पता है लेकिन गुजराती में उसको उद्धत बोलते हैं। राइट। तो वो अविनय, अवर्णवाद, अपराध, अविनय। ठीक है। परफेक्ट। यस सर। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद।
Okay, Kanchan bhai. जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। આપતવાણી 6 અને પાન નંબર 81 થોડુંક લાંબુ છે પણ ગુજરાતીમાં વાંચું તો ચાલશે ને? પ્રશ્ન બોલો ને, પ્રશ્ન શું છે? આ વાંચું હવે। નઠારા સંયોગ વધારે રહે નહીં, લોકો દુખી કેમ છે? કારણ કે નઠારા સંયોગોને સંભાળીને દુખી થાય છે। એ ગયો, હવે શું કામ કાન માંડી છે? રાજે તે વખતે રડતો હોય તો વાત જુદી છે, પણ હવે તો તને મટવાની તૈયારી થઈ તોય બૂમો પાડે કે હું દાજ્યો। તમારે હવે સંયોગો એકલા રહ્યા છે। મીઠા સંયોગો તમને વાપરતા નથી આવડતા। મીઠા સંયોગો તમે વેદો છો એટલે કડવા પણ વેદવા પડે છે, પણ મીઠાને જાણો તો કડવામાં પણ જાણવા પડવું રહેશે। આ સમજાવો થોડું સરસ। देखो ऐसा है, पहले तो समझो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे दादा भगवान ने अपना अनुभव बताया, जब उनको एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद 4, 5, 6 घंटे या दूसरे दिन उनको मिलने आए तो सब लोगों ने कहा दादा एक्सीडेंट हुआ। तो दादाजी के वचन क्या निकले थे कि जब से एक्सीडेंट हुआ तब से वो रिपेयर हो रहा है। यानी एक्सीडेंट में टूटा था लेकिन अब वो अच्छा हो रहा है। तो टूटा था वो तो हो चुका, लेकिन अगर मैं बोलता हूं एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट, तो यानी अभी एक्सीडेंट हुआ हो ऐसा मैं बोलता हूं, जो हकीकत में आज तो वो रिपेयर हो रहा है। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव रहना है। बराबर, ठीक है। हाँ, अभी वो दूसरी बात क्या है कि अच्छे संयोग होते हैं और बुरे संयोग भी आते हैं, लेकिन अच्छे संयोग को भी देखना है। यानी साता जो आती है, सुख आता है, उसको भी देखना है शुद्धात्मा दृष्टि से, और असाता जिसे हम दुख कहेंगे तो उसको भी देखना है। लेकिन जब साता आती है ना तो उसका वेदन कर लेते हैं, उसकी ठंडक चख लेते हैं। इसीलिए जब असाता आती है तो उसका दुख भी भुगतना पड़ता है। दोनों वेदनीय कर्म को देखना ही है। समझ गए? सुख को अगर आप वेदन करते हैं तो दुख को भी वेदन करना पड़ेगा, लेकिन सुख को अगर देखेंगे तो दुख बड़ी अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। ये बताना चाहते हैं। इसीलिए देखने का जो पुरुषार्थ में हम आए हैं तो वो देखते रहना है हमें। એમાં આગળ બીજી બે લાઈન છે, પણ તમને હજુ પહેલાની આદતો જતી નથી, તેથી વેદવા જાવ છો। આત્મા વેદતો જ નથી, જે વેદે છે તે ભ્રાંત આત્મા છે, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે। તેને આપણે જાણવું કે ઓહો હો, આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જલેબીમાં તન્મય આકાર થઈ ગયો છે। उसका मतलब क्या है कि नलिनी बेन एकाकार होते हैं। नलिनी बेन को भुगतान आता है और वे बोलते हैं बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उनके बोलने में हमें साध पुराना नहीं है, उनके साथ बैठना नहीं है। जैसे कि अगर कंचन भाई बोलते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेरा पेट दुख रहा है, आप बोलेंगे ना कंचन भाई का दुख रहा है। लेकिन जब चीनी बहन बोलेंगे कि मेरा पेट दुख रहा है, दोनों का सेम पानी निकलती है, लेकिन वहां पर आप अलग रह पाते हैं। लेकिन जब नली बहन बोलते हैं कि मेरा पेट दुखता है तो उनके छोड़ देते हैं अपने आप को, उसे मेरापन कहा। तो वहां जागृत रहकर नलिनी बहन के इस वेदन को, इस भुगतान को देखना है।
ये नलिनी बहन को कहा है और ये हमें प्रयोग करना है। शुद्धात्मा दृष्टि का प्रयोग है। जय सच्चिदानंद। कंचन ने प्रश्न से कही। हाँ, आगे आई। हाँ, नहीं कांतियान जी, आप बोलिए। આપણે આ જીતેન્દ્ર મોહજીન અને જીન મોહજીન, ક્ષીણ મોહજીન એ જરા સમજવું હતું, उसको जरा समझाए बराबर। कांतियान जी सुना? हाँ, बताएं। 1 by 1 बताइए। पहले एक बताइए। जितेंद्र मोहजीन वो क्या होता है? जितेंद्रिय जीन। He lost him again. He lost? Yep. Come on. कांतियान जी, देखिए कंचन भाई, जिस दिन हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञानी पुरुष की कृपा से कर्म भस्मीभूत होने पर हम इंद्रियों से मुक्त होते हैं। इसीलिए पहली रात्रि का जो समय है वो जितेंद्रिय जिन की दशा है हमारी। ज्ञान आज मिला, यानी भगवान के साथ शादी का पहला दिन और यानी पहली रात जो है वह जितेंद्रिय जिन की है। यानी ज्ञान मिलने पर आप जिन यानी ज्ञानी हो गए और इंद्रिय आपने जीत लिया। और सारी रात का ये जो निधि ध्यान के प्रयोग से जो आपको परिणाम मिलता है वो दूसरे दिन आप जित मोह जिन हो जाते हैं। यानी एक अंश मोह आपने जीत लिया, जिसके कारण शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ जाता है और बाकी का जो उसको क्या बोलते हैं चारित्र मोह जो है ना, बाकी का जो चारित्र मोह है उसको आज्ञा धर्म से आप जीतते जाते हैं। इसीलिए जित मोह जीन कहा। एक कुछ मोह जीत लिया है और कुछ मोह बाकी है, तो बीच वाली यात्रा है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान वो क्षीण मोह है। क्षीण मोह यानी वो एक गुणस्थान की भूमिका है। 12वें गुणस्थान की अप्रमद दशा को क्षीण मोह बोलते हैं। इसीलिए कविराज के पद में आता है जेनी रे संतोष है ना, नित्य थी जित मोह जीन अथवा रे, वो है। और दादाजी स्वपर प्रकाशक है ऐसा करके। और ज्ञानी अपने तीर्थंकर भगवान तो परमात्मा है, जिनेश्वर। समझे? उसका मतलब वो 12वें गुण स्थान का बराबर है, लेकिन उनका मोह बिल्कुल क्षीण हो गया ऐसे। हाँ, अपमद प्रमाद रहित दशा, अपराध। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो 12वें गुण स्थान को क्षीण मोह कहते हैं। बराबर। जय सच्चिदानंद। अभी दीपक जी क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन है, मुझे स्कैन करने दो कौन है यहाँ पर। ओके, अभी आएगा। देखो कहाँ है। एक मिनट, अभी बताता हूँ। गीता बहन है कि नहीं? गीता बहन, हाँ, वो तो उनके पास बहुत ढेर सारे प्रश्न होते हैं। गीता बहन आपकी किताब निकाली है? अरे उनको किताब की जरूरत नहीं है। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय स्वामी जी, आज हाँ जो कि माना कि धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र
ठेस ना पहुंचे। हाँ, तो जो सुबह ये बात चली थी तो इसमें जो अभी तक हमने समझा था कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या अन्य अन्य धर्म है, इनके प्रमाण को ठेस ना पहुंचे, या कोई साध्वी साध्वी है इनके प्रमाण को ठेस ना पहुंचे। लेकिन सुबह जब ये बात चली तो मुझे एकदम से अंदर लगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसका व्यवहार, उसके गुण, उसके आचरण, चोर है तो वो चोरी, हम उसको ये भी ना बोले कि वो चोर है, उसके प्रमाण को ठेस ना पहुंचे, इतना बड़ा मतलब ये सॉल्व हुआ था। कुछ आप एक्सप्लेन करके बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। किसी को भी बिल्कुल ठेस ना पहुंचे कि धर्म यानी मान्यता, किसी के भी मान्यता को ठेस ना पहुंचे इस तरह से, यानी सभी की मान्यताओं को स्वीकार करके हमें केंद्र में रहना है, सभी की मान्यता को स्वीकार करना है, सभी की मान्यता से एडजस्ट होना है और केंद्र में रहना है, ऐसा विज्ञान हमें मिला है। समझ गए आप? इसमें हुआ कि ये कितना बड़ा। मैं आपका वीडियो बंद करता हूँ, आप बोलेंगे तो सुनाई देगा, बोलिए अब। माना कितना बड़ा पजल हमारा अपने आप से सॉल्व हो गया कि कहीं हमें किसी के प्रति कुछ है ही नहीं, कि सच में हमारे बोलना जैसा कुछ है ही नहीं, कि कुछ हम उसके कि किसी की भी किसी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। उसको क्या बोला, किसी को भी छेड़ने जैसा नहीं है। मतलब छेड़ने जैसा नहीं है, मुझे लगा कि उसकी क्रियाओं को देखने जैसा भी नहीं है, बराबर है। यानी मन में भी किसी भी मान्यता का विरोध करना नहीं है, क्यों ऐसा करके, ऐसा ही है करके। सही बात है, मतलब ये बहुत, मतलब इसको यदि हम इसको एनालिसिस करेंगे तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पजल सॉल्व करती है ये बात। सही, बिल्कुल बात सही है। वो धीमे धीमे जैसे हमारी जागृति बढ़ती जाएगी तो ये हमें समझ में आता जाएगा इस तरह से। और स्वामी जी, एक जो बोलिए, जो सुबह जो भाषा वाली बात चली थी ना, हाँ, भाषा माना कि भाषा और वाणी है ही नहीं, माना, हाँ, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे? अंतियानंद जी। हाँ जी, बता रहिए। आप आते भाषा कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, का प्रश्न मैंने ठीक से नहीं सुना। हाँ, 1 मिनट यहाँ पर बीच में आवाज कट जाती है ना। हाँ, यस, 1 मिनट। अंतियानंद जी, ये सुबह में ये एक प्रश्न आया था, 1 मिनट। हाँ, अभी मैं लाता हूँ। आपका वीडियो थोड़ा टेढ़ा है, चलेगा। अब आप पढ़ सकते हैं कांदियानंद जी? स्क्रीन पर आया? नहीं, मगर पढ़ना मुश्किल है ना, थोड़ा टेढ़ा है तो। टेढ़ा हमें तो सीधा है, लेकिन हमें आप टेढ़े दिखते हैं। हो गया सीधा नहीं, तेरे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, बड़ा करता हूँ। ओके, अभी हो गया। ये है बात, अब पढ़िए, ठीक है? हाँ, तो ये गीता बहन को वाणी और भाषा में तफावत सो જેટલું બસવામાં આવે છે। हाँ, यस। આ એ બધી ભાષા કહેવાય। हिंदी बोलिए। सुनने में जो आता है વાણી હોય છે, બીજા લોકોને વાણી નથી હોતી।
भाषा હોય છે। એટલે इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्यों को वाणी होती है और बाकी के सभी को भाषा होती है। जैसे ये प्राणी है, ये प्राणी बोल नहीं सकते, उनकी वाणी नहीं है, मगर फिर भी वो आपस में भाषा से अपनी कोड लैंग्वेज में समझ जाते हैं। हाँ हाँ, और आगे आगे स्वामी जी गुजराती में है, आप ही पढ़ पाएंगे। हाँ, दीपिका ने थोड़ा मोटा अक्षर पढ़ी थोड़ा। ये तो मैक्सिमम है, नहीं तो मैं पढ़ूं। ये मैक्सिमम है। हाँ, क्योंकि फिर नहीं, स्क्रीन में मेरे को- आएगा नहीं वो। आप चश्मा डाले ना। अच्छा, ऐसा हाँ, है। उसका त्याग करो। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अच्छा रहेगा। टाइम लगेगा लेकिन अच्छा है ना। अब ठीक है। पढ़िए आप। ભાષા બધાની પણ વાણી મનુષ્યોની એકલાની હોય। જાનવરને વાણી ના હોય। બાકી ભાષા તો સૌની ભાષા હોય। જ્યાં જન્મ્યા હોય ને ત્યાં એની ભાષા એને આવડે। ગુજરાતમાં જન્મ્યો તો ગુજરાતી ભાષા આવડે, બીજી ભાષા શીખે એટલે બીજી ભાષા આવડે। મુસ્લિમોની લેંગ્વેજ हिंदी। हाँ आपका वीडियो फिर कट गया लग रहा है, ऑडियो। कांति आनंद जी चले गए। बोलिए बोलिए कांति जी बोलिए। कांति आनंद जी बोलिए। हाँ, मनुष्यों को वाणी है, बस इतना समझना है हमें। हाँ बाकी सभी की भाषा है, अपनी अपनी भाषा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी समझ में आया। हाँ जी। ठीक है स्वामी जी। अभी दीपकांत जी अभी एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है। कांति आनंद जी, दीपकांत जी। ओके। हाँ जी। अभी एक्सपीरियंस का लेगा कांति आनंद जी। हाँ जरूर जरूर। आज जो हमारे बीच पधार रहे हैं अपना अनुभव कहने के लिए, वे गीता बहन ही है अलवर से। बड़े उत्साही है और बड़े कम समय में अच्छा ग्रहण किया है, तो हम उनका अनुभव सुनेंगे। पधारिए गीता बहन, बोलिए। मैं 1 मिनट आपका वीडियो ऑन करता हूँ, फिर ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आवाज ठीक तरह से आएगी फिर। ठीक है। एक बार जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब बोलिए, अब चलता है तो चलेगा, फिर मैं नहीं तो वीडियो बंद कर दूंगा अगर नहीं ठीक से चला। ठीक है स्वामी जी। हाँ। अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी को नमस्कार। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार। ज्ञानवान गुणवान आप्त पुत्रों को नमस्कार और सर्व महात्माओं को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
मेरा अनुभव था कि दादाजी की जो कृपा है और उनका जो ज्ञान है उसको शब्दों में बयां कर पाना तो अति 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 मुश्किल होता है, लेकिन उनकी कृपा से जो मुझे अनुभव हुआ उसे मैं आप सबके सामने शेयर करने की दादाजी को विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि जैसा मुझे समझ में आया वैसा ही मैं सबको समझा पाऊँ। माना दादाजी का ज्ञान मुझे 2015 में उनकी ज्ञान विधि का सौभाग्य मुझे मिला था, और दादाजी के मिलने के बाद जो ज्ञान विधि हुई थी उसके बाद जब मैं चरण विधि किया करती थी तो मुझे ऐसा अंदर से ऊर्जा 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 फील हुआ करती थी। और आवाज आ रही है स्वामी जी? आ रही है, बोलिए। और मुझे समय समय पर केलनपुरी जाने का और तिवरी जाने का, वहां सब जगह जाने का संयोग प्राप्त हुआ। और जब यहाँ आप्तपुत्र आया करते थे तो मुझे सत्संग में जाने का सौभाग्य मुझे मिला करता और मैं जैसे भी जाया करती थी। लेकिन कुछ दिन जब मैं कभी आप्तपुत्रों को सुनती समझती तो मुझे लगता था कि माना जो मैं कई बार कांति आनंद जी को भी मैंने पूछा कि आपके अंदर इतनी जो सौम्यता है, सहजता है, सरलता है, सत्यता है, वाणी में इतनी मधुरता है, क्या हम में भी हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ, आप दादाजी से प्रार्थना करेंगे तो जरूर हो पाएगी। फिर एक बार पुरीनानंद जी आए तो मेरी स्कूल में एक बाल सभा का आयोजन था जो सौभाग्य से मुझे अपने सनातन केंद्र पर ही करने का अवसर मिला। तो वहां मैं एंकरिंग कर रही थी। मैंने उस आयोजन को अच्छे से संपन्न किया। पुरीनानंद जी ने भी उसमें अपना जो भी उनका विचार था वो प्रकट किया। शाम को हम किसी महात्मा के यहाँ गए और उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। तो पुरीनानंद जी हम के साथ हम बैठे हुए थे, वो अपना खाना खा रहे थे शाम को सत्संग के बाद। तो उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि मीठा बोलना, लेकिन उसके बाद मना। तो मुझे लगा कि ये मना कि कुछ भी और भी है जो अभी मुझे सत्संग भी समझना है। माना आज्ञा को हम समझते थे, पढ़ते थे, जो भी हम ज्ञान की बातें चर्चा होती थी उनको सुनते थे, समझते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, समझ में भी आता था। अचानक से क्या हुआ, अचानक तो मुझे कहीं लगा कि कुछ और मर्म है जो अभी मुझे समझना बाकी है। ये ज्ञान तो मुझे अभी शब्दों में और अर्थों में ही समझने में आया है, इसका ज्ञान का अभी तो कुछ और मुझे बाकी है कुछ समझना। ऐसे करके कि सौभाग्य से क्या हुआ कि सौभाग्य से लॉकडाउन के पहले जस्ट मेरी तबीयत खराब थी तो हमारे सभी घर में बहुत सारे लोग मेहमान आए हुए थे उनको देखने और उन्हीं दिनों नवीनानंद जी का यहाँ आना हुआ और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हमारे घर ही उनका रुकना हो गया। तो उनका जो सत्संग हमने मंदिर पर सुना, लॉकडाउन के कारण एक ही दिन हुआ और जो वो हमारे घर पर एक दिन रहे थे तो उनकी उपस्थिति में जो मेरे अंदर मना की सहजता और शांति और एक आनंद और एक अलग सा उत्साह और एक ठंडक की मैं फीलिंग उनके सानिध्य में कर रही थी कि मुझे बस वही अच्छा लगे और मुझे कुछ बोलने का मन ना हो और मैं घर का पूरा काम करूं, सबका सब कुछ करूं। उनके चले जाने के बाद मैंने उनको रास्ते में बोला कि जो मुझे आपके सानिध्य में फील होता है वही शायद आपको दादा के सानिध्य में फील होता होगा। तो उन्होंने हाँ करके ऐसे ही मना जवाब दे दिया और वो चले गए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद अपने आप पुत्रों का सत्संग यहाँ आना शुरू हो गया। और जब ये सत्संग आना शुरू हुआ तो मैंने उसको हर तरीके से समझने की कोशिश करी और मुझे लगा कि कहीं कुछ है जो अभी मुझे शब्दों में और अर्थों में ही पता है पर मर्म मुझे इसका अभी समझना है। और मैंने उस मर्म को समझने के लिए
आप पुत्रों का सत्संग को मैंने सुनना शुरू किया, फिर मैंने गुजराती में भी सुनना शुरू किया, और मैंने पुराने जो वीडियो थे और उनका हर एंगल से मैं घर का काम करके लॉकडाउन के बाद, और जो अपनी सारी चित्त वृत्तियां थी सारी ओर से समेटकर, बस मेरा फोकस यही था कि कैसे भी मुझे इस ज्ञान के मर्म को समझना है कि आखिर स्वामी जी हमें समझाना क्या चाहते हैं। तो मैंने उसको जब भी मुझे समय मिलता, रात को जब भी नींद खुल जाती, मैं उनके पुराने वीडियो को, नवीनानंद जी का वीडियो हो या अपने परेशानंद जी का वीडियो हो, हिंदी के सत्संग का है, जयमेशानंद जी का हो, इनका भी हो, मैं उनको हर एंगल से समझती थी। और हर एंगल से समझकर मैं उनको, चाहे वो 6 तत्व की बात करते, वो निकोद की बात करते, वह अज्ञान को हटाने की बात करते, तो मैंने उसको समझा। तो अचानक से लॉकडाउन के समय मेरे अंदर से क्या हुआ कि मुझे अंदर से ही एकदम से ऐसा हुआ कि जो तू अपने समझती है यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तू तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और वो अज्ञान मुझे अंदर 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 फील हुआ, और मुझे उसका डिमार्केशन, एकदम सेपरेशन मुझे फील होने लगा कि ये तो मैकेनिकल बॉडी है जो माना कि जो अपने कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत से मिली हुई है। स्वामी जी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए। बिल्कुल आ रही है। जो हुआ, हाँ ठीक है, मुझे हुआ कि मेरे माना कि जो मुझे गीता की बॉडी मिली हुई है कुदरत से, ये तो कर्मों के भुगतान का साधन है, और मैं तो अविनाशी आत्मा परमानेंट हूँ। फिर मुझे लगा, फिर मुझे इस बात का अनुभव हुआ, तो मेरे अंदर से सारे पजल सॉल्व हो गए कि दादाजी का मर्म क्या है। अज्ञान को निकालना ही सबसे बड़ा दादाजी का ज्ञान का जो मर्म था वो मुझे अंदर फील हुआ। शब्दों में मैं सुनती थी, अर्थों में मैं सुनती थी, ऐसे ही मेरा मन वचन काया पर है, पराधीन है। दूसरे का मन वचन काया भी पर है, पराधीन है, इजिकल टू जगत निर्दोष। और मुझे उसी दिन से जगत निर्दोष दिखाई देने लगा। मुझे फील होने लगा कि जो ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, त्यागियों को, वैरागियों को, सन्यासियों को दुर्लभ जो चीज रही होगी, अपना अज्ञान निकालना, और मेरा मन वचन काया पर पराधीन है, दूसरे का मन वचन काया भी पर पराधीन है। तो मुझे रामायण की वो बात याद आने लगी कि राम को उनकी माँ ने वनवास दिया, फिर भी उनको उनके प्रति वो निर्दोष कैसे लगी। मीरा ने जहर पिया और अमृत करके हुआ, वो पजल भी मेरा सॉल्व हुआ कि वो उसको मीरा ने जहर को अमृत क्यों कहा। इस तरीके से मुझे जब मेरा ये अंदर से ये पजल सॉल्व हो गया कि ये मन वचन काया पर पराधीन है, तो दूसरे का मन वचन काया भी पर पराधीन है, और किसी के प्रति फिर ना गुस्सा हुआ, ना उसके एक्शन में कोई रिएक्शन होने लगा। और जहाँ बच्चे हैं, माना जहाँ बच्चों को भी कुछ बोलने जैसा नहीं, उनका मन वचन काया भी पर पराधीन है। जहाँ वहाँ कुछ जाने नहीं लगा, तो वहाँ सब कुछ स्मूथली अपने आप चलने लगा। ये मेरा अपना जो रियल माना अनुभव था वो था। और रिलेटिव अनुभव की मैं बात करूं, जहां मुझे फिर समझ में आता है कि दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारा यदि ज्ञान, दर्शन और चारित्र शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हारा व्यवहार तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। मुझे उनकी बात याद आने लगी। फिर उसकी बात करूं तो जब आप तो पुत्र यहाँ पर आए, जयमेशानंद जी आए, तो मेरे बेटा सीए कर रहा है, तो वो उसका फाइनल का पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि मैंने जयमेशानंद जी को और बेटे की बात करवाई, तो उन्होंने उससे बात करी, और जैसे भी जो था मैंने उसको बताया, और उसने बोला
हुआ क्या कि उसने जब उनके बताने के बाद जब उसके पेपर का रिजल्ट आया तो उसने वो देख ही नहीं रहा था कि मम्मी मेरा इस बार इससे पहले जो मैंने ग्रुप दिया था उसमें मेरा पेपर ज्यादा अच्छा हुआ था और मुझे कभी आशा ही नहीं थी कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं वहां रह गया था। इस बार का पेपर तो मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं है। तो वो अब रात को 2-3 बजे तक रिजल्ट आने के बाद वो देखे नहीं, फिर भी उसे रहा नहीं गया होगा तो उसने अपना रिजल्ट खोल के देखा और रात को 2:30 बजे बोलता है कि माँ मेरा पेपर क्लियर हो गया। मैंने कहा अरे कि मम्मी मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मुझे पहले वाला जो मैंने पेपर दिया था वो तो मेरे बहुत अच्छे हुए थे, ये पेपर तो मेरा इतना अच्छा हुआ ही था। तो जब ही नहीं निकला तो मैं अब कैसे निकलूं। तो मुझे जयमेशानंद जी का वो आशीष याद आया कि उन्होंने वो जो उसको आशीष देकर गए थे, वो जो ऊर्जा देकर गए थे वो काम आई। एक बार कांति आनंद दूसरा अनुभव मैं बताती हूँ कि एक बार मैं 2015 में अलवर में मेरी स्कूल थी, वहाँ मेरा स्कूल में मेरा पोस्टिंग था जहाँ मैं अभी भी हूँ। तो वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया था। तो वो सनातन केंद्र के बिल्कुल पास रहा करता था और मैं जब भी आप उतराया करते थे तो मैं वहां सत्संग प्रिंसिपल से पूछ के और 2 घंटे के लिए स्कूल मेरे पीरियड लेट हुआ करते थे तो मैं वहां चली जाती थी। तो मुझे वहां सुटेबल होता था और मैं सत्संग का पूरा लाभ लेती थी। 2015 में मेरा अचानक से वहां से ट्रांसफर हो गया और मुझे जहाँ ट्रांसफर हुआ वहां से आने में मुझे सत्संग ज्वाइन करने में मुझे तकलीफ होती थी। तो मैंने दादाजी को प्रार्थना किया कि दादाजी मैं यहाँ होती थी तो मैं झट से मतलब स्कूल आ जाती थी और अपना सत्संग भी सुन लेती थी। तो अचानक से 2 साल के बाद अचानक ऐसा हुआ कि जोधपुर एक महात्मा का फोन आता है मुझे कि आपको अपना ट्रांसफर कराना है तो आप अपनी एप्लीकेशन एमएलए से फॉरवर्ड करा के भेज दो। एमएलए इतना एंटी था कि उसी ने ही तो यहाँ ट्रांसफर मेरा यहाँ से करवाया था तो वो साइन ना करे, पर उसके ऊपर कहीं ऊपर से दबाव आ गया और उसको सिग्नेचर करने पड़े कि मैं यहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ, आगे से नहीं होगा, जयपुर से होते हैं ट्रांसफर को और शिक्षा विभाग के ट्रांसफर होना अति मुश्किल होते हैं। मैं देखती हूँ कि सारे ट्रांसफर हो चुके थे, लास्ट मोमेंट था और लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ गए और उन दिनों मैंने रिजर्वेशन करा कि मैं तिवरी के सत्संग में जा रही थी। मुझे रास्ते में फोन आया कि आपका ट्रांसफर हो गया। फिर मैंने कहा देखो कितना मतलब दादाजी को प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो कितनी हमारी आगे बढ़ने की सुविधाओं को कितना सुलभ और सहज कर देते हैं। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी तो मैंने कभी भी जब से मैंने हौसला संभाला है मम्मी बीमार खांसी और ऐसे कुछ रहता था। फिर वो अनकॉन्शियस भी रहने लग गई थी, थोड़ा उनको नींद भी नहीं आने नींद की भी प्रॉब्लम हो गई थी इस तरह। तो मैं उनको नींद नहीं आती थी तो मैं उनको सत्संग में ले जाया करती थी सनातन केंद्र में। तो वहां एक बार क्या हुआ, कांति आनंद जी वहां आए हुए थे तो मम्मी ऊपर बैठी हुई थी तो मैंने कहा मम्मी आप असीम जय जयकार बोला करो और जो सत्संग सुनाते हैं उनको सुना करो, समझा करो तो आपको समझ बैठेगी तो नींद आने लगेगी। लेकिन उनका मानसिक विक्षिप्तता इतनी अधिक थी कि वो कुछ ना सुन पाती होंगी या ना समझ पाती होंगी, लेकिन असीम जय जयकार जरूर करती होंगी या कुछ अंदर दादाजी को मैं भी करूं प्रार्थना करती थी, मम्मी भी करती होंगी। तो कांति आनंद जी ने मम्मी के बैठे हुए माला डाली गले में। कुछ दिन बाद ही मम्मी को एक दिन अचानक बेहोशी की अवस्था आ गई और हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां डॉक्टरों ने मम्मी का इतने अच्छे से इलाज कर दिया कि मम्मी को उसके बाद ना कभी नींद की प्रॉब्लम हुई और ना कभी खांसी की और आज वो बहुत ओके हैं। इस तरह से मेरे इतने ज्यादा अनुभव कि मैं कभी स्कूल में हमारे स्कूल में 4th क्लास से लेके और प्रिंसिपल लेवल के 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड लेक्चरर सारे लोग हैं। तो वहां पर मुझे स्टाफ सेक्रेटरी का पद दिया हुआ है। तो किन्हीं कारणों से वहां पर कोई बात में विवाद हो जाता है या कुछ बात में किसी बात को लेकर हो जाता है, स्टाफ के लोग आपस में कर लेते हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था तो मुझे
आपस में लोगों के बीच कुछ बातों को लेकर विवादित स्थिति पैदा हो गई, वहां मुझे बुलाया गया कि आप इस बात को कैसे सुलझाएंगे या कैसे बोलेंगे। तो मैंने दादाजी को प्रार्थना किया कि हे दादाजी, मुझे समभाव से निकाल करने की शक्ति दो, दादा मुझे समभाव से निकाल करने की शक्ति दो। और जैसे ही उन लोगों के बीच में मैं गई तो वहां जिस तरीके से बात शुरू हुई कि सब लोगों का अंदर से अलग ही रिएक्शन रहा, बात जो थी वो तो कहीं और चली गई और सबके अंदर वो आनंद और उत्साह भर गया। मैं हमारे समाज में अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया हुआ है मुझे। तो मैं कभी हमारे समाज के लोगों के बीच में जब जाती तो वहां 200, 400, 500 की संख्या होती है, तो वहां कभी मुझे बोलने का मौका मिलता तो वहां जो समाज की रूढ़िवादिताएं हैं या अन्य जो समाज के विकृतियां हैं उनके संदर्भ में वहां बात होती, तो मुझे ये रहता था कि इसको यदि ये अध्यात्म के विषय से इनको समझ में आए तो इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मुझे भी बोलने का मौका दिया जाता। तो मैं दादाजी को प्रार्थना करती कि हे दादा, यहाँ जो भी बोला जाए, जो भी मुझसे बोला जाए, जो भी यहाँ के लिए सही हो, वो आप मेरे अंदर से निकलाएं। मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं क्या बोलती थी, कैसे बोलती थी, किस लिए बोलती थी, किस टॉपिक पे बोलती थी। जब लोगों की तालियां बजती थी तब मुझे होश आता था कि कुछ यहाँ अच्छा बोला गया है, जो लोगों ने अच्छा सुना है। तो इस तरह से मैं जब स्कूल में भी जब मैं होती हूँ तो माना जब मैं बच्चों के बीच में भी होती हूँ तो हमारी स्कूल में उत्सव आते हैं, कभी विवेकानंद की जयंती आती है, कभी गांधी जी की, सरदार पटेल की। तो वहाँ इतने लेक्चरर हैं, इतने और सेकंड ग्रेड टीचर्स हैं, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता कि इस टॉपिक पर खड़े होके कुछ बात कर दें। अब जब दादाजी का जब ज्ञान मिला तो विवेकानंद जी क्या कहना चाहते थे, गांधी जी क्या कहना चाहते थे, सरदार पटेल एकता के बारे में क्या कहना चाहते थे, वो मुझे तुरंत समझ में आ जाता था। और दादाजी के उसी ज्ञान को संदर्भ में रखते हुए मैं चाहे विवेकानंद जी का टॉपिक हो, चाहे सरदार जी का हो, उस टॉपिक पर मैं एक लंबी चर्चा स्कूल के बीच कर दिया करती थी, जिसको बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस सुना करते थे और स्टाफ के लोग भी, और बाद में बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोले। ये सब बोलने की जो युक्ति थी वो सब दादाजी से ही आई। ये मैं व्यवहार की बात करती हूँ। बाकी जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि मनुष्य जन्म में जो हमें अज्ञानता मेरी चली गई और जो मेरे सारे पजल सॉल्व हुए, ये सबसे बड़ा मेरा अनुभव है। और मैं दादाजी को प्रार्थना करूंगी कि जैसा पजल सॉल्व हुआ है ऐसा ही सबको हो, लेकिन उसके पीछे अपनी चित्त वृत्तियों को चारों ओर से समेटकर, चाहे प्रकृति की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे इधर की हो, चाहे उधर की हो, सबको एक तरफ मोड़कर कि मुझे दादाजी के ज्ञान का मर्म को समझना ही है। इस तरीके से मैंने उस पजल को सॉल्व किया और वो लॉकडाउन में मेरा वो पजल अच्छे से सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं दादाजी को प्रार्थना करती हूँ। ये मेरा अनुभव है। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। आपने तो आपके स्कूल में जो बोलते थे ना, ऐसा। एक मिनट दीपकानंद जी, एक मिनट। और उसके बाद तो हाँ, एक बार केलनपुरी में एक बार ये भी कहा गया कि गुजराती में दादाजी के मर्म को समझना है ना तो गुजराती सीखना और समझना पड़ेगा। तो मुझे बहुत भारी लगता था, कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन जब मैं लॉकडाउन में गुजराती सत्संग सुनने लगी तो मुझे उसका गुजराती लैंग्वेज समझ में भी आने लगा। और उसके बाद तो इतना अच्छा लगने लगा कि सुबह उठे तो चरण विधि मिले, कुछ घर का काम करके निपटे तो 10 बजे फिर से गुजराती सत्संग मिले, और उसके बाद और अपना घर या नौकरी का व्यवसाय करके
फ्री हो तो फिर शाम को 4 बजे 3 बजे फिर सत्संग मिले, नहीं तो रात को 9 बजे तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो अनुभव खुला होता गया। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ये लगता था कि दादाजी ये बोलते हैं कि अपना काम निकालो, अपना काम निकालो, ये मेरे अंदर रहता था कि मैं अपना काम कैसे, मैंने अपना काम निकालने के लिए दादाजी क्या बोलते हैं। फिर जो ये पजल सॉल्व हुए तो मुझे लगा कि अब मुझे समझ में आया कि दादाजी अपना काम निकालने के लिए क्या बात बोलते थे। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगी कि यदि हम दादाजी को तहे दिल से प्रार्थना करें ज्ञान को समझने की, या अन्य को डिमांड करें, तो वो डिमांड हमारी सप्लाई होती ही होती है। दादा ऐसा लगता है कि दादाजी बिल्कुल पास कर रहे हैं हमारा सुनने के लिए। मैं कांति आनंद जी को बोलती, आप में इतनी सहजता कैसे है, आप में इतनी सरलता कैसे है, आप में इतनी सौम्यता कैसे है, क्या हमको भी हो सकती है। तो वो चीज आज हमें फील हो रही है कि हाँ हो सकती है। जब लॉकडाउन में दीपिका आनंद जी सत्संग किया करते थे, मैं बोला इतना टाइम कैसे बैठ लेते हैं सत्संग में। मैंने उनको बोला आप कौन सा ड्रिंक पीते, तो बोला दादा के ज्ञान का ड्रिंक पीते हैं। अब मुझे समझ में आने लगा सच में दादा के ज्ञान के ड्रिंक पे तो कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, कितना पावर है। मुझे भी अब कभी थकान नहीं होती। एक बार मेरा कोई सामान खो गया था घर में, मैं 3-4 दिन ढूंढती रही। मुझे हर घर का एक कॉर्नर ढूंढ मारा। मैंने कहा मैं तो रखकर भूल गई, पर दादाजी आप तो नहीं भूलते ना। इतना ही कहा होगा कि मेरी वृत्ति मुझे वहां जहां वो रखी थी 1 ही सेकंड में वहां ले गई और मुझे वो मिल गई। नहीं तो मैं कितने ही दिनों से ढूंढ रही थी। इतने व्यवहार के छोटे छोटे अनुभव, तो कितने अनुभव है। तो लगता है कि सच में दादाजी बोलते हैं ना कि लक्ष्मी का और व्यवहार तो तुम्हारे बाई प्रोडक्ट में मिलता है। अब मुझे सच में अनुभव होने लगा कि वो तो बाई प्रोडक्ट में मिलता है। पर जो पजल सॉल्व हुआ है ना, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, गीता पढ़ी, अष्टावक्र पढ़ा, ज्ञान प्रकाश पढ़ा, और मैंने सुख सागर पढ़ा, योग वशिष्ठ पढ़ा, इतना पढ़ा, सब में बुद्धि भ्रमित होती गई, बोझा बन गया, दिमाग में ऐसा खिचड़ा बन गया था, कुछ समझ में नहीं आया था। पर तब पता चला कि दादाजी का ज्ञान तो इतना सहज, सरल और सत्य है कि यदि यहाँ इसको विज्ञान के तरीके से इसको समझा तो सारे पजल सॉल्व हो गए। और जब जयमेशानंद जी बोलते थे तुमको शुद्धात्मा पद मिल गया तो तुम्हारा तो अब श्रीमंदर स्वामी के यहाँ रास्ता खुल गया। बुद्धि उसको कैसे भी स्वीकार कर लेती थी, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता था। अब सच में स्वीकार करता है कि दादा इस कलयुग में हमको लेने ही तो आए थे कि भव मेरे में तुम घूमे पड़े हो। तो दादा ने ऐसे उंगली पकड़कर हमको उठा लिया। और अब सच में लगता है कि हम श्रीमंदर स्वामी के यहाँ तो है ही, चले ही जाएंगे। ऐसे दादाजी ने जो उठाया है ना, दादाजी ने जो विज्ञान पकड़ाया है ना, उसके अनुसार अभी इतना मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही। जो हो पा रहा है तो मैंने कह दिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा कोई शब्द नहीं रहा, क्योंकि दादा का अनुभव है और जैसे दादा असीम है, दादा का विज्ञान असीम है, वितरागों का विज्ञान असीम है। तो ये अनुभव भी हमें उस चोटी पर ले जाता है कि जहाँ कोई सीमा नहीं है, जहाँ कोई शब्द नहीं है। लेकिन आपके अनुभव से 2-3 बातें बहुत महत्व की आती है कि दादा से आपको दृष्टि मिली है, दादा का ज्ञान आपने जाना है, आपको प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जितने दिल से आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना काम करेगी, क्योंकि दादा कहते हैं कि मुझे काम करने दो, आप हट जाओ बीच में से। तो प्रार्थना करने से हम हट जाते हैं, फिर देखो कैसे कैसे परिणाम आते हैं। जैसे आपके लड़के की बात की, फिर अपने मम्मी की बात की, फिर आपकी ट्रांसफर की बात की, ये सभी चीज क्या बता दी। और जो बात ये सब आज तक के जो धर्मशास्त्र थे वो कोई अधूरे नहीं है, सब बराबर है, लेकिन दृष्टि के अभाव से समझ में नहीं आता है। और दृष्टि प्राप्त होने पर सब जैसे आपने कहा कि पजल ही सॉल्व हो गया। अब जहाँ पजल सॉल्व हो गया तो अब कोई पजल रहा नहीं,
तो कोई समस्या रही नहीं। जहाँ जाओ वहां अपने ही लगते हैं। और ये महसूस करने पर ये जो आपका अनुभव है बहुत ही बढ़िया है। और जैसे आप बोलते हैं ना, बंदी नहीं होता है, चलता ही रहता है। इतने ढेर सारे अनुभव है, छोटे 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 करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दादा को प्रार्थना करना है, वो कैसे होता है वो बुद्धि से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हमें उसका जवाब मिल जाता है। गीता बहन धन्यवाद, विजय से धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपके अनुभव से बहुत मैं मानता हूँ बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखो गुजराती तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मुझे तो थोड़ा समय लगा, लेकिन आपको तो बहुत कम समय में समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रगति करते रहना और सभी को लाभ देते रहना। और जैसे आपने कहा कि ये जो मेरा पजल सॉल्व हो गया है, तो बस एक भावना है कि ये सारे विश्व के लोगों का पजल सॉल्व हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी आप वीडियो ऑन करिए प्लीज। जय सच्चिदानंद गीता बहन। हाँ स्वामी जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम मेक इट अ 3। हमको भी गुजराती नहीं आता था, so we are all together। आपने सत्संग में आके सत्संग सुन के कितना एनालिसिस किया ज्ञान का, और उसमें मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। अभी मैं थोड़ा दीपकान जी, आई वांट टू शेयर सम फीडबैक। इस अनुभव सुन के आपने आप दिल बोलने लगा। Very versatile, proper application on spot, excellent experience. Very clear understanding of Dada's Gnan, excellent. Very practical Anubhav, astounding application, beautiful experience, amazing experience, and progression in a short time. Jai Satchidanand. तो अभी दीपक आनंद जी, कांति आनंद जी है? कांति आनंद जी कांतियान जी, तो अभी गीता बहन ने जैसे बोला कि आप 2 मिनट 3 मिनट के 4 मिनट में आप बताएं आपको क्षमता कैसे रहती है, वो एक्सपीरियंस तो बताओ। वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी। अरे प्रत्येक संयोग में मैं शुद्धात्मा हूँ, यह अनुभव हो रहा है, यही सबसे बड़ा मेरा अनुभव है। बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कांतिया जी आप त्रि मंत्र बुलाए और गीता बहन प्लीज फॉलो। हाँ। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सर्व पावपणासनो। सर्व पावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलाणं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।